right beta? Anyone who has done this question number 1 beta? Question number 1, 2.3 exercise. Exercise 2.3, question number 1. See, in question number 1, which of the following relation are function? Give reason. If it is a function, determine the domain and range. So like first question, first part, they are giving relation 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1, 17, 1, right? So they're asking, is this relation is a function? They have given the name, this roster data is relation. So is this relation a function? Yes, sir. And what is the reason beta? I'm asking reason beta. The element of Sir, all elements of first set have unique image in set B. Set B. This is the justification if you are writing yes answer. And you can see by this diagrammatical, all have one image. So next year you will learn what is this function known as. So next year in 12th class you will know the name of this function. This is known as many function. Many point has one image. It means it is many one function, right? One point has one image. This is known as one function. So this type of function you will learn in class 12. So basic function, what is function, that is in class 11. So yes, this is a function. Yes, right? Now second part beta. In this, we have 2, 1, 4, 2, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. Now, is this a function beta? What you have to see beta, एक पॉइंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए. जैसे 2 के साथ 1 है, थोड़ी देर में 2 के साथ 4 भी लिखा आ गया. इट मीन दिस इज रॉन्ग. दिस कैन नॉट बी अ फंक्शन. तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट की दो इमेज ना हो. तो चेक करो वेदर in this roster form of relation we have any point whose images are more than one. Is this a function beta? Check karo beta, batao. yes sir. This is a Yes, sir. function. As 2 has single image, 4 has single image, 6 has single image, 8 has single image, 10 has single image, 12 is single. Sir. It is not function. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yes, it is a function beta because one point has one image. So distinct point of set A has unique image. Now third one beta, it is 1, 3 and 1, 5 and 2, 5. So अगर हम इसका डायग्राम देखें तो this is 1, 2 and here we have 3, 5. So 1 has 3 image, 1 has 5 image and 2 has 5 image. So अगर diagrammatically देखें, Not so a function. yes, it is not a function. It is not a function, right? And इसका reason क्या है? As one has two images, 3 and 5. This is the reason. One point cannot have more than one image beta. एक point की एक image हो सकती है, right? Then they are asking if it is a function, determine its domain and range. अगर ये function है तो उसका domain बताओ बेटा. Sir, Domain. 2,
5, 8, 11, 17, Set of and first 14. element, right First beta? element. So 2, 5, 8, 11, 14, 17. And range is what? Only Set one, 1. right beta? Only हाँ जी one. beta. Now next, what is the domain of second part? Bolo. Set first element. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. And range in this case, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the range. ठीक है बेटा? तो ये रिलेशन को फंक्शन बताने का तरीका है. इफ वन पॉइंट हैज वन इमेज or many point has one image, then it can be a function. But one point has more than one image, then it is not a function. ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें बेटा. Next concept is question number 2. They're asking find the domain and range of the following function. Find the domain and range of the following function. So आपको मालूम है डोमेन क्या होता है और रेंज शायद हमने डिस्कस नहीं किया था या पता नहीं किया था. डोमेन था बेटा the set of points for which the function is defined. The set of points for which the function is defined, right? This is domain. And what is range? What is range? This is the set of images of the function under its domain. उस डोमेन के अंदर देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये डोमेन आया था और इसकी इमेज सबकी 1 आ रही है. द सेट ऑफ इमेजेस अंडर द डोमेन is known as range, right? In this situation domain is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So if we put this domain points beta, what are the range? Yani possible images are this one. So set of images of the function under its domain is known as range beta. Is this clear beta? एक नॉर्मली बात करते हैं चलो. लाइक माई सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स. ठीक है. सो माई टीचिंग डोमेन इज व्हाट बेटा? माई टीचिंग डोमेन इज व्हाट? बोलो बेटा, आप बताओगे. आई एम ए टीचर एंड माई सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स. so my teaching domain is mathematics बेटा. is this clear बेटा? अब अगर मुझे बोल दिया जाए कि ललित सर जाके किसी क्लास में एसएसटी पढ़ाएंगे, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? डोमेन इज, अगर मेरे डोमेन में आप मुझसे काम कराओगे तो वो काम जस्टिफाई भी होगा. आप मैथ्स के टीचर को एसएसटी पढ़ाने के लिए दे दोगे, मैथ्स के टीचर को संस्कृत पढ़ाने के लिए दे दोगे, तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. आपका मतलब वो काम होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे क्या हो गया? फंक्शन हो गया टीचर, डोमेन हो गया उसका सब्जेक्ट, एंड नाउ रेंज. अब अगर मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, देखो बेटा, एक फंक्शन हो गया टीचर, ये डोमेन, यहाँ पे बहुत सारे आपके होते हैं सब्जेक्ट, ये रेंज होगी. रेंज का मतलब क्लासेस 1 to 12, राइट? और टीचर है और मैंने यहाँ पे मैथ्स लिखा, मैथ्स. अब मेरा डोमेन हो गया मैथ्स. दिस इज माय डोमेन. मैथमेटिक्स क्लास 1 में भी होता है टिल क्लास 12. स्कूल की बात कर रहे हैं. दिस स्कूल इज नोन एज व्हाट? बताओ भाई, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट डन टिल नाउ. दिस स्कूल इज नोन एज बेटा कोडोमेन. दिस इज माय कोडोमेन. वर्किंग कोडोमेन इज माय स्कूल, राइट?
नाउ व्हाट इज माय रेंज? अगर एक पर्टिकुलर टीचर की बात करूं, लाइक मैंने अपनी बात की ललित, सो आई एम टीचिंग क्लास 11th एंड 12th, दिस इज माय रेंज। ठीक है बेटा, बट यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बेसिकली एक पॉइंट की दो इमेज है, तो यहाँ पे इससे ये मतलब मत समझना कि मैं एक ही टाइम पे 11th क्लास को ही पढ़ा रहा हूँ और 12th को पढ़ा रहा हूँ, नहीं, दिस इज माई रेंज। तो मेरे पास अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं टीचर, और उस टीचर में भी स्पेसिफिक फंक्शन है ललित, सो डोमेन, मेरा डोमेन हो गया बेटा मैथमेटिक्स, मैथ्स, एंड रेंज जो होगी बेटा, माई रेंज इज इन 11th एंड 12th, ये मैंने आपको लिख दिया। ठीक है बेटा, तो रेंज क्या होता है? उस पर्टिकुलर डोमेन में आप क्या क्या इमेजेस दे रहे हो उस पर्टिकुलर डोमेन में, दैट इज नोन एज योर रेंज। इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? लाइक आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, आपके पास 100 रुपीज हैं, आपने उसमें आप एक पेन भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस 100 रुपीज के एक्सपेंसेस की अगर स्टेशनरी आप चेक करो तो पेन भी ले सकते हो, 10-20 शीट्स भी ले सकते हो, कोई बुक भी आ सकती है 100 में, तो ये रेंज है 100 की फॉर स्टेशनरी पर्पज। तो योर फंक्शन इज स्टेशनरी, डोमेन इज 100 रुपीज एंड योर रेंज इज दिस वन, what you can purchase under this 100 rupees। बेटा कुछ क्लियर हुआ? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डोमेन और रेंज आपको क्लियर करने की, तो आप बताइए मुझे कि ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, फिर हम क्वेश्चन से करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, क्लियर है? चलो अब देखो, नाउ क्वेश्चन, सपोज करो, अब आपको चलो एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ, रफ क्वेश्चन, दिस इज माय फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो फर्स्ट आई नीड टू गेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन का मतलब है आपका ये फंक्शन किस सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए डिफाइन है, बोलो भाई। r-0। r-0। अब आप इसका मतलब समझना, r-0 कैसे लिखता है। अगर मैं 0 लिखता हूं तो दिस बिकम 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो यानी मुझे ये वाला पॉइंट नहीं लेना कभी भी इस फंक्शन को, अगर मुझे बताना है तो। ठीक है, अब आ जाओ r कैसे बेटा, अगर मैं -1 पुट कर रहा हूं x की वैल्यू, तो दिस इज गिविंग अ डेफिनेट वैल्यू, -2 पुट कर रहा हूं तो आंसर इज -1/2, अगेन गिविंग अ डेफिनेट वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, दीज आर दी पॉजिटिव, और आप डेसिमल में लोगे तो 1.1, 1/1.1, दीज आर गिविंग सम डेफिनेट वैल्यूज। सो सेट ऑफ फंक्शन यानी all the set of points for which the given function is defined is known as domain। तो इसमें सिर्फ एक 0 को हटा दें तो मेरा ये फंक्शन हर पॉइंट के लिए डिफाइंड, ये हर वो काम कर सकता है, सिर्फ 0 पुट करने से काम नहीं करता। ठीक है ना बेटा, ये एक वो चीज है डोमेन। अब आ जाओ इसके रेंज की बात करते हैं। रेंज, अब आप रेंज चेक करो बेटा, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब मुझे 0 को छोड़ के हमारा आर की वैल्यू रियल नंबर पुट कर रहे हो, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। आप इस डोमेन में उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब आप इस साइड आ रहे हो, और मैक्सिमम वैल्यू ये डिसाइड करो। अगर पर्टिकुलर आंसर आ रहे हैं तो सिर्फ वही पॉइंट लिखने, जैसे हमने पीछे लिखा था 11, 12, दीज आर नोट नोन एज इंडिविजुअल पॉइंट्स। और जब सेट बनता है, मतलब कहने का मतलब कई बार रेंज आती है, तो आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है फॉर रियल नंबर? नेगेटिव। नेगेटिव व्हाट? -∞। -∞, राइट। और पॉजिटिव क्या आ सकती है? इन्फिनिटी। पक्का? यस सर। अब यहां देखो, ये गलत कर रहे हो आप। इफ वी पुट x वैल्यू 1, आंसर इज 1, करेक्ट, exactly equal to 1। now as we increase the point, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने 2 पुट किया तो ये लेस देन 1 हो गया, 1/3 यानी x की वैल्यू 3 पुट की, इस x के 3 पुट किया तो और लेस देन 1 हो गया। तो मैं जितनी वैल्यू इसकी इंक्रीज करूंगा ये लेस देन 1 होता चला जाएगा।
तो देखो आपने अभी ये भी रॉन्ग है आपका। आप देखो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है व्हेन वी आर पुटिंग x इक्वल टू 1 इन दिस केस, सो 1, और ये एग्जैक्ट आ रही है तो इसको हमने क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया, दिस इज द मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वी हैव टू राइट इन द राइट हैंड साइड। सर 1 से छोटा डाल देंगे तो 1 से छोटा कौन सा डालोगे? सर अच्छा हाँ 0.00 बिल्कुल, क्योंकि मैंने रियल नंबर लिया है, अभी तो मैं नेचुरल नंबर ले रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बोला। अब क्या लोगे आप बताओ बेटा? 1 की वैल्यू आपने 0.1 ली तो आंसर इज 10, करेक्ट। और अगर आपने 1 की वैल्यू 0.01 ली सो आंसर इज 100। सिमिलरली 1 इज 0.0000, तो अब आप सही कह रहे हो बेटा। नाउ दिस इज अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है। जितनी स्मॉल वैल्यू लोगे आप उतना इसका बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू बेटा। और इनफाइनाइट ये कोई नहीं है, तो यानी कि ये इंक्लूडेड पार्ट नहीं होगा, दिस विल बी इन दी ओपन इंटरवल ऑलवेज। अब लेफ्ट साइड में आ जाओ बेटा। लेफ्ट साइड में आप चेक करो, अगर आपने -1 डाली तो -1 जा रहा है, -2 डाली तो -1/2 जा रहा है। तो सिमिलर वे में अगर मैं आपकी वैल्यू डालता हूं 1/-0.1, तो दिस बिकम -10 बेटा, यानी कि नंबर लाइन पे बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं 0.1 डालता हूं, 0.01 डालता हूं, तो नाउ दिस बिकम -100, तो -100 की तरफ जा रही है। तो अगेन इसका आंसर फिर से यही हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन बेटा इसमें एक आंसर है जो कभी नहीं आएगा, बताओ कौन सा आंसर है जो कभी नहीं आएगा? 0। Zero. So my range is what? -infinity to infinity minus यानी except 0. So I can write this thing बेटा again. अब बताओ ये पॉसिबल है बेटा? Yes. कैन वी राइट, बिकॉज ये नंबर्स हैं, मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूँ, कोई 11th का कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा। कैन वी राइट -infinity to infinity लाइक रियल नंबर? क्योंकि इसके अंदर सारे रियल नंबर आ गए बेटा। ऑल टाइप ऑफ आंसर वी कैन हैव बेटा, या इंटीजर्स आएंगे इसके आंसर? ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर मैं x की वैल्यू रियल नंबर पुट करूंगा यहाँ पे तो इसके आंसर हमेशा इंटीजर्स में आ रहे हैं, ऐसा कुछ है बेटा? नो सर। क्योंकि अगर मैं 0.2 पुट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 0.3 पुट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 0.4, अभी मैंने 0.1, 0.01, 0.02 पे दिखाया था, ठीक है। तो दिस इज द रेंज बेटा, यानी कि रेंज कैसे निकालते हैं वो ये तरीका है। और दूसरा तरीका भी है बेटा रेंज निकालने का, कि आपको डोमेन तो समझ में आई गया मान लिया, तो रेंज निकालने का ये भी तरीका है। फर्स्ट आपने f(x) इक्वल टू फंक्शन था 1/x, राइट, और आपने इसका डोमेन मुझे बता दिया, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, करेक्ट। अब मुझे रेंज निकालनी और मैं ऐसे पहचान नहीं पा रहा नंबर लाइन या डेटा को पुट अप करके, सो अज्यूम दिस एज y, नाउ दिस इज y इक्वल टू 1/x, नाउ कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ y, so this is 1/y। अब जो इसका डोमेन होगा वो बेसिकली इसका रेंज होगा। आया समझ में नहीं आया बेटा बताओ? देखो मैंने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया, इनिशियली द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, now I've converted x in terms of y, so whatever the domain of this function now, that is actually the range of this one। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये इसको बना दिया। तो अगेन अगर मैं इसका डोमेन देखूं तो वो आ रहा है रियल नंबर एक्सेप्ट 0 अगेन, राइट। तो ये आपका रेंज होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन इसको कर रहे हैं। और रेंज को निकालने के लिए मैंने आपको ये एक तरीका बताया है, अल्टरनेट टूल, कि सपोज दैट फंक्शन एज y, then convert that x function in terms of y, so whatever the domain of y, that is actually the range of the x, आपके फंक्शन एक्चुअल फंक्शन की रेंज होगी। बोलो ये क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा बोलो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेन रेंज।
हमेशा ध्यान रखना बेटा, जितने क्वेश्चन मिल जाए इसमें प्रैक्टिस करने के लिए वो आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अच्छा पहले आपके पास ये है, तो टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस करते हैं बेटा। पहले रुको, हमने टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस नहीं किए, कौन कौन से फंक्शंस वी हैव, देन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। टाइप्स, फर्स्ट टाइप है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। इसको ध्यान रखना, 12th में बहुत यूज होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा? देखो, आइडेंटिटी फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, और दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, और in terms of y it is y. Identity means if we are putting x equal to 1, answer is 1. Whatever the pre-image, that is the image only. आपकी pre-image भी वही है और image भी वही है, that is known as your identity function. ठीक है, and this is a function from real number, sorry, real to real. तो अब मुझे इसका डोमेन और रेंज डिसाइड करना है। अगर किसी डिनोमिनेटर के सॉरी किसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ तो कांस्टेंट 1 है बेटा डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये हर पॉइंट के लिए डिफाइन है। आप जो भी पॉइंट डालोगे कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं होगा। सो इट मींस डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, एंड बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, इफ वी पुट x equal to 1 आंसर इज 1, इफ वी पुट x equal to 2 आंसर इज 2, -1 आंसर इज -1। ठीक है, तो जो पॉइंट हम पुट करेंगे वही आंसर देगा। तो मैं ऑल रियल नंबर आई कैन पुट हियर, इट मीन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, सो इट्स रेंज इज आल्सो रियल नंबर। बोलो बेटा, ये क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? यस सर, यस क्लियर। अब इसका एक बार ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ कैसे होता है, जो आपने लास्ट ईयर शायद आपने 10th तक ग्राफ बनाया होगा, ये टेबल फॉर्म बनाया बेटा नहीं बनाया बताओ? यस सर। यहाँ क्या लिखते थे आप? X. X, and here we write y, right? Y means this fx is actually known as y beta. This fx is actually known as y. So actually this is y equal to x. So now if we put x equal to 0, my answer is 0. If we put x equal to 1, my answer is 1. If we put x equal to -1, my answer is -1. If we put x equal to 2, answer is 2. And if we put x equal to -2, -2. तो कुछ पॉइंट्स ले लिए बेटा हमने, अब इसके ड्रॉ करते हैं। x, x dash, y, y dash. Now 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4. So if we put 0, so my point is this one. Next is for 1, 1, this point. For -1, -1, this point. Then 2, 2, this point. And for -2, -2, -2 पे -2 point, this one. Join these points and extend. This is your identity function graph. Right, beta? So question is what, beta? Now first, write identity function, 1 mark question. Your answer should be fx equal to x or f of y equal to y. You can write. Okay? So this is known as identity function of x, and this is known as identity function of y. In class 12, you will see I of x. I of x means identity function of x is x, right? And identity function of y, you will see this y. So these two things you will use in class 12. ध्यान रखना बेटा, मैं बार बार मेंशन करता हूं so that कि 12th में प्रॉब्लम ना हो किसी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है बेटा? So अब next question is what is, now 1 marker question, what is the domain of identity function? Your answer is
real number. What are the domain and range of the identity function? Real number, real number. Draw the graph of identity function. This one, beta. These are all one marker question. And if you are making this graph, there is no need of making this thing for getting 1 mark, beta. अगर आप बना रहे हो, वो आपके बनाने का प्रोसेस हो सकता है, तो आप दिखाओ, बट आपको नंबर पूरे यहाँ मिलेंगे आपको 1 mark. Is this clear or not, beta? Identity function is clear, beta? Yes. Yes, sir. Okay. Now Yes, next sir. function is constant function, beta. Number 2, constant function. पहली चीज बेटा, this term, what is constant means? Anyone? What is constant mean? First, take it as an English word. What is the meaning of constant? Sir, constant means the value doesn't change at all. Value doesn't It change. remains the same. आपने कुछ रेट मैथ से कर दिया अभी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, what is the meaning of constant? English word. अगर मैं इससे कहूँ कि आप इसको मुझे एक्सप्लेन करो, what is constant means? So Sir, that something something that remains same throughout. Same throughout, correct. Which is fixed. We can say fixed things are known as constant. ठीक है. आप जैसे नॉर्मली बात करें, आपका घर है, मेरा घर है, आपका घर है. आज आपका घर यही है, कल उठोगे तो दूसरी देर में थोड़े से 2 फुट की दूरी पर चेंज हो जाएगा. फिर कल और उठोगे एक बार तो 3 फुट डिस्टेंस हो जाएगा. फिर नेक्स्ट डे आपका कुछ और चेंज हो जाएगा. तो वो आपके डेज जा रहे हैं, आवर जा रहे हैं, ठीक है. ईयर आपका घर जहां है वहीं पे है, मतलब दैट बिल्डिंग इज देयर ओनली, राइट. दैट इज नोन एज कांस्टेंट थिंग्स. जो जहां है वहां फिक्स हो गया, दैट इज नोन एज कांस्टेंट. अब मैथमेटिकली कैसे करते हैं? अभी इस बच्चे ने बताया कि व्हाटएवर वी क्या कहते हैं, इनपुट कुछ भी दें हम उसमें, वो जो सिस्टम है, मशीन आपका वही की वही आपको प्रोड्यूस कर रहा है. दैट इज नोन एज कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब, सपोज आई हैव रिटन हियर fx इक्वल टू सपोज 2 लिख दिया मैंने. अब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की. व्हाट इज द आंसर बेटा? If we put x equal to 1, what is my answer? 2. If we put x equal to minus 1, my answer is 2. If we put x equal to 0, my answer is 2. Again, if we put x equal to 10, my answer is 2. मैं कोई भी इनपुट कर प्री इमेजेस या कह लो इनपुट डाल रहा हूं, this machine is producing only 2, this 2 number. This is known as constant function. तो अगर आपका कोई वेरिएबल होगा, सपोज करो मैंने ये लिखा, अब 2x लिखा, सो नाउ दिस इज नोन एज वेरिएबल. अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 हो गया, 2 पुट करने पे 4 हो गया, -1 पुट करने पे -2, -2 पुट करने पे -4. सो दिस इज नोन एज वेरिएबल फंक्शन, जो वेरी करता है, हर इनपुट के हिसाब से वेरी करता है. ठीक है, हर इनपुट के हिसाब से वेरी करता है. एक नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. टीचिंग अकॉर्डिंग टू यू, टीचिंग इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल फंक्शन? कांस्टेंट और वेरिएबल? So variable. इट इज वेरिएबल. एक्सप्लेन करो बेटा कैसे. Sir, because So it profession varies from. टीचिंग, आई एम जस्ट अबाउट, आप इस समय मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स टीचिंग ले लो. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगली क्लास आएगी 11th की सेम चीजें पढ़ा रहा हूँ, फिर अगली क्लास आएगी फिर सेम चीजें पढ़ा रहा हूँ, फिर अगली क्लास, हर साल में वही चीजें पढ़ा रहा हूँ. तो वो कांस्टेंट हुई या वेरिएबल हुई, ये पूछ रहा हूँ. Sir, constant. कांस्टेंट. कितने लोग कांस्टेंट बोल रहे हो? Three, 4 students are saying constant. Sir, but it you teach to some other class also.
some other class 12th or हाँ वो भी पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है। so चलो sir कोई नहीं। देखो बेसिकली अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जाओ तो टीचिंग इज अ वेरिएबल फंक्शन, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता बेटा। आप कभी भी देखना, टीचिंग कभी फिक्स नहीं हो सकती बेटा। टीचिंग फिक्स कैसे नहीं हो सकती बेटा? अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा कहेगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया ये क्या है, तो अब ये फिक्स कैसे हो गया कि मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर ही नहीं हुआ ये, अब मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूंगा, फिर एक बच्चे ने दूसरा ले लिया एक और कि सर मेरे को नहीं समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल, अब दूसरा बताओ, या मेथड ले लेते हैं, मैंने एक मेथड से क्लियर किया, आउट ऑफ 40 10 स्टूडेंट को समझ में आया, फिर मैंने सेकंड मेथड यूज किया, फिर वही किया, आउट ऑफ 40 नाउ 15 हो गया, फिर बच्चों को समझ में नहीं आया। तो टीचिंग क्या है? दिस टीचिंग शुड बी अ वेरिएबल एंड दिस इज चेंजिंग एज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज। मैंने कोई कंटेंट डिलीवर किया, स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया, तो हर बार अच्छे बच्चे थोड़ी मिलेंगे बेटा, समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? तो टीचिंग इज ऑलवेज अ वेरिएबल फंक्शन, ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। अब ये आपने कहा कि अब सपोज करो मैंने अभी 11th ए साइंस सेक्शन को पढ़ाया है, 11th कॉमर्स को पढ़ाऊंगा, 11th ह्यूमैनिटी को पढ़ाऊंगा, सारी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है बेटा। जो चीज मैं आपके संग ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि वो आपके काम की है, जेई में कह लो या कहीं पे भी काम की है, लेकिन कॉमर्स वालों को सिर्फ और सिर्फ और ह्यूमैनिटी वालों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। समवेयर इट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, विच एवर रिलेटेड फॉर द क्या कहते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स, कॉमर्स के लिए कमर्शियल अप्रोच दिखानी है मुझे, आपके लिए मुझे टेक्निकल अप्रोच दिखानी है, ठीक है। ह्यूमैनिटी के लिए आप कहीं से भी रिलेट कर दीजिए, ज्यादा टेक्निकल जाओगे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आप नहीं कर सकते। सो दिस टीचिंग इज, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, दिस टीचिंग इज ऑलवेज अ वेरिएबल फंक्शन बेटा, ऑलवेज रिमेंबर। ये बेटा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इज टीचिंग इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल फंक्शन? तो दिस आंसर शुड बी अ वेरिएबल। टीचिंग is always changing according to the student, according to the student need, according to the syllabus, according to the time के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है बेटा सिलेबस वो टीचिंग। अगर मुझे बोला जाए कि 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करो, तो मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ा के आपको चैप्टर कंप्लीट कर दूं, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हेल्दी वे में पढ़ाओ, तो जो भी आपका डिस्कशन मेरे साथ चल रहा है, कोई पॉइंट हुआ तो हमने डिस्कस किया, तो टीचिंग कैन नॉट बी कांस्टेंट बेटा, सिलेबस कैन बी ए कांस्टेंट बेटा फॉर फ्यू ईयर्स। अगर मैं बात करूं लास्ट 10 ईयर से हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, लास्ट जो चेंजेस हुए हमारे सिलेबस में 2006 में हुए बेटा, ये नई बुक आप पढ़ रहे हो, दिस इज द एडिशन ऑफ 2006, यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो नाउ दिस इज 21, बुक इज सेम। तो लास्ट 15 ईयर से आपके जो कंटेंट है 11th क्लास का 15 ईयर से वो सेम है। सिलेबस जरूर पेंडेमिक की वजह से चेंजेस किया है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। आज पेंडेमिक हट जाएगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो सिलेबस और बुक वी कैन से कांस्टेंट फंक्शन फॉर अ पीरियड, 10 साल के लिए बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं 2006 से 2020 तक, तो 2006 टू 2010 दिस इज नोन एज डोमेन, इसके बीच में आपका सिलेबस का क्या है, रेंज है, तो सेम है, फिक्स है, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट मींस मैथमेटिकली व्हाट इज द कांस्टेंट मींस? अ टर्म इंडिपेंडेंट। बेटा ये भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, डिफाइंड कांस्टेंट मैथमेटिकली, डिफाइंड कांस्टेंट मैथमेटिकली, अ टर्म independent of any variable, independent of any variable। अब independent का क्या मतलब है, इसको यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, not multiply and not divide। आपका कोई भी टर्म ना तो मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल होना चाहिए, ना ही डिवाइड बाय एनी वेरिएबल होना चाहिए। टर्म की बात कर रहा हूं बेटा, सपोज आई हैव रिटन 5, this is a constant, but as I have written it this 5x or 5 upon x, now this term become variable function, oh sorry मतलब function हो गया, ये constant नहीं है मतलब। सर ऐसा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ भी है।
नहीं, अब मैंने आपको इसीलिए स्पेशली बोला टर्म, बोला आपने, क्वेश्चन आपका जेन्युइन है बेटा. नाउ इट इज 5 plus x. This is overall a equation. So overall, this is a variable function overall. But individually, if I'm talking about this 5 is constant, this x is variable. So in question, मैंने इसीलिए term defined किया है. Any term which is independent of any variable is known as constant. Is this clear बेटा? क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अब नेक्स्ट ईयर आप कैलकुलस पढ़ोगे, एक्सटेंशन ऑफ कैलकुलस ऑफ 11th क्लास इस साल भी आपके पास, तो वहां पे कांस्टेंट क्लियर होना जरूरी है आपको, और वेरिएबल क्लियर होना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिकॉज कैलकुलस कैलकुलस में इसका रूल अलग है और वेरिएबल का रूल अलग है, तो आप पहचान पाओगे जब वो बात है. और जब पूरे फंक्शन में लगाते हैं तो कांस्टेंट के लिए अलग सिचुएशन होती है, वेरिएबल के लिए अलग सिचुएशन. ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर बेटा? बोलो. बेसिकली मैंने आपको टर्म से बताया था, फंक्शन इज वेरिएबल. बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है टर्म, ये कांस्टेंट का मतलब? Yes. बोलो. Yes, sir. दिस कोई भी डाउट हो बेटा डिस्कस करो. आप चाहे 6 क्लास का डाउट हो, देखो जितने डाउट डिस्कस करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. और आप लोग कमियां यही करते हो कि आप छोटी क्लास में 6, 7, 8, 9, 10th में कभी भी डाउट नहीं पूछते हो. इंटरैक्ट किया करो हमेशा टीचर से कि सर नहीं ये क्लियर नहीं हुआ. मैं ये नहीं कहता कि हर आंसर को मैं आपको उसी समय दे दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरा काम यही है कि आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी क्वेश्चन को किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल से रिलेट करके बता पाऊं. ठीक है बेटा, बोलो. सो दिस इज कांस्टेंट बेटा. अब नॉर्मल कांस्टेंट कैसे बोलते हैं? देखो, कांस्टेंट फंक्शन अगर मुझे इंडिकेट करना है तो कैसे इंडिकेट करेंगे? कांस्टेंट फंक्शन, कोई कांस्टेंट अल्फाबेट ले लो बेटा. एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने के ले लिया, राइट. अब आप एक चीज देखना बेटा, यहाँ पे कोई सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है. मैंने कांस्टेंट लिखा है तो कोई एक पॉइंट है उसकी इमेज भी के है, सेकेंड पॉइंट उसकी इमेज भी के है, दिस इज ऑल्सो. ठीक है. सो मुझे अब बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? Sir, real numbers. ये भी रियल है और ये भी रियल है. चलो, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, राइट. नाउ व्हाट इज रेंज बेटा? रेंज क्या बोलते हैं बेटा? सेट ऑफ इमेजेस. तो इमेज तो आपकी एक ही है बेटा, तो वी राइट इन करली ब्रैकेट बिकॉज वन एलिमेंट ओनली. तो जब एलिमेंट मेंशन करते हैं तो करली ब्रैकेट बनाते हैं. अब आपके नंबर कहाँ कटेंगे? एज यू रिटर्न दिस के ओनली, आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज रेंज इज ऑलवेज अ सेट, डोमेन इज ऑलवेज अ सेट, and this R is individually the universal symbol, universal representation of real number. The set of real number is denoted by capital R, right beta? So this is domain and range of a constant function, right beta? Now this is the second function. Now third one, polynomial function. Polynomial function. अब मुझे बताओ, is this what is polynomial means? What is polynomial mean? Sir, an algebraic expression in which the power of the variable is not in rational number form. Rational number form. It means you are saying if I am writing Sir, it should not be negative. It should not negative. be negative and in fraction. अच्छा, ये आपने कहाँ पढ़ा बेटा कि मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5x 2x raised to the power 1/2 and 3. What is this? This is a polynomial or not? Sir, not a polynomial. So what is this actually?
Algebraic expression. Algebraic expression. Okay. If I am writing this upon 4 plus x now, what is this now? नया नहीं है बेटा, मैं ये आपसे अप टू 10th whatever you have learned about the number system वगैरह सब जो चीज भी है आपने क्या पढ़ा. What is this known as? What is known as Algebraic function which is function. represented by p by q, where q is not equal to 0? Rational number. बस हो गया, rational expression. Initially you said correctly beta, this is an algebraic expression. Now it become rational expression, right beta? p by q where q is not equal to 0, this is not equal to 0. ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे लिखना पड़ेगा x not equal to -4, तभी ये फंक्शन डिफाइन है जो मैं ये बोल रहा हूँ. बिकॉज इफ यू पुट x equal to -4, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना. पॉलिनोमियल फंक्शन आपने बिल्कुल सही बोला बेटा. इफ आई एम राइटिंग सपोज x4 then x cube plus x square plus x plus 5, this is polynomial function f of x equal to x4 x cube plus x square plus x plus 5. This is known as polynomial function. What is the name of this polynomial function? Biquadratic. आपने चलो बाइक्वाड्रेटिक बोल दिया. और why we are saying it is biquadratic? We name that polynomial by the highest power of the your variable. So 4 is known as biquadratic, correct? And what is the name for highest power 3 beta? Cubic. Cubic. What is the name with highest power 2? Quadratic. Quadratic. And what is with 1? Linear. Constant. Yeah, very good. ये मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं. अब ये ध्यान रखना, what is known as linear function. ये कैलकुलस में बहुत यूज होगा बेटा. वहां पे ये मत कहना कि सर हमने कभी डिस्कस नहीं किया. कैलकुलस में यूज होगा. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. ठीक है, what is linear? Any polynomial expression whose highest power is 1. So now it is polynomial of degree 1. ठीक है, this is known as linear function. X plus 5 linear function, 2x plus 5 linear function, 1 minus x linear polynomial function, right? If I'm writing only x, this is linear polynomial function, right? What is that known as with degree 0? Constant. Constant. So can we say that constant function is a polynomial function? बोलो बेटा. Yes, sir. All of you बेटा. अभी आपके सामने सब कुछ चल रहा है बेटा, राइट? और अगर आप जैसे ये तो बाय नेम हो गए, पावर 4 का बाई क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक, 2 इज क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर, 0 कांस्टेंट, राइट? अगर अब मैं बोलता हूं कि 7 पावर है हाईएस्ट, तो देन दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7. तो ये सब वही है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, पॉलिनोमियल डिग्री 1, पॉलिनोमियल 2, पॉलिनोमियल डिग्री 2, पॉलिनोमियल डिग्री 3, पॉलिनोमियल 4. ठीक है, इस तरीके से. बट फर्स्ट टू 4 आप कह लो, एक तरीके से इनको नाम दे रखा है बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड कांस्टेंट, इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद बेटा, इस फंक्शन फ्रॉम R to R. ठीक है, रेंज एंड डोमेन आपको जब आप फंक्शन को बताओगे किसी पॉलिनोमियल का, तो आपको उस क्वेश्चन को देख के बताना है कि रेंज और डोमेन क्या दे रखा है. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा कि क्या होता है इसका रेंज और डोमेन. ठीक है, अब मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूं बेटा. सपोज वी हैव अ फंक्शन x plus 5, मान ले ये फंक्शन लिया, तो आपको मालूम होगा कि f(x) equal to x plus 5, which type of polynomial is this बेटा? Which type of polynomial is this? The linear. Linear Linear polynomial. polynomial.
And what is the type of graph of this linear polynomial? Straight line. Straight Straight line. line. Very. This is always a straight line. This may be this. कैसा भी हो सकता है बेटा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनाएगा, ठीक है, जब डिग्री 1 होगी तो आपको ये 11th में ही हेल्प करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में, ठीक है। अगर आपके पास fx equal to x square plus 2 as suppose, now what is the type of this graph? Quadratic Parabola. polynomial. ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ग्राफ क्या होगा इसका? पैराबोला। Parabola. Parabola. आप लोगों ने उस शेप का नाम पैराबोला होता है, बट अगर मैं आपको ये स्पेसिफिक नाम ना बोलूं पैराबोला, सो व्हाट टाइप ऑफ दिस ग्राफ इज नोन एज? तो अगर आप फिर x क्यूब प्लस 2 बोला तो क्या नाम दोगे? क्या बेटा? Sir, curved graph. Curved graph. कर्व होता है बेटा, डिग्री 1 से ऊपर होते ही दैट ग्राफ इज कर्व, कोई कर्व बनेगा, स्ट्रेट नहीं होगा वो, ठीक है, डिग्री 1 से ऊपर। ये तो बेटा एक स्पेसिफिक नेम हो गए। इफ वी हैव अ इवन पावर दैट इज ऑलवेज पैराबोलिक शेप, ठीक है, वो हमेशा पैराबोलिक होगा। अगर मैंने आपको x4 प्लस 2 लिख दिया या 2x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया, दिस इज अ पैराबोलिक, ठीक है। देन व्हाट इज द नेम ऑफ x क्यूब? क्यूबिक फंक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्राफ क्यूबिक के लिए? क्यूब नाम है बेटा, वैसे आपने सही बोला, ये पैराबोलिक हो गया। दिस इज व्हाट? बोलो बेटा, बोलो, कोई बात नहीं। बेसिकली दिस इज नोन एज जिगजैग ग्राफ। कुछ ग्राफों के नाम दे रखे हैं बेटा, जैसे आपने इसका पैराबोला बोला, करेक्ट है, बट अगर लीनियर से ऊपर आता है कोई भी बेटा, लीनियर से, ठीक है ना, तो उसका क्या मतलब बेटा? दैट लीनियर is always a straight line and more than degree 1, this is always a curve shape। कोई ना कोई कर्व बनाएगा। कर्व कैसा भी हो सकता है, इस टाइप का कर्व हो गया, इस टाइप का कर्व हो गया, या कोई इस टाइप का कर्व हो गया, ठीक है ना, यहां तक सीधा आ रहा है, फिर यूं कर्व हो गया, फिर सीधा हो गया, फिर यूं कर्व हो गया, ऐसे ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है आप डिग्री को देख के बता सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बस वो कर्व बनेगा। और कुछ के नाम दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक, पैराबोला, क्यूबिक इज नोन एज जिगजैग ग्राफ, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा बेटा? एनीवन बेटा? व्हाट टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ? पैरेलल टू x axis और पैरेलल टू y Parallel to axis. स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? सर स्ट्रेट लाइन होगा। बिल्कुल बेटा, और वो भी सही बोल रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो हमेशा या तो यहाँ होगा ऐसे, इस साइड में कहीं पे ऐसे हो सकता है बेटा, ऐसे हो सकता है पैरेलल टू y एक्सिस, इस टाइप से भी हो सकता है पैरेलल टू y एक्सिस, नेगेटिव x एक्स वो, और ये इस तरीके से, ठीक है। कांस्टेंट इज ऑलवेज लाइक, क्लियर बेटा? चलो, और हम बात करेंगे, आपकी कोई और क्लास भी, आई थिंक मैं कुछ ज्यादा टाइम दे गया हूं बेटा। 1 सेकेंड प्लीज होल्ड ऑन, डोंट लीव द क्लास बेटा। ऑलवेज रिमेंबर दैट आई विल गिव द अटेंडेंस हु इज इनिशियली प्रेजेंट एंड एट द Sir. एंड ऑफ क्लास इज प्रेजेंट। यस बेटा। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था। अमन। अमन, The Vanya. वानी ऑल्सो, चलिए, बट 2 स्टूडेंट इज लेफ्ट बेटा, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कौन। चलो ठीक है बेटा, यू कैन लीव नाउ। Sir, I have a